सब्सक्राइब कीजिए एडुनारा वर्ल्ड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एग्जाम्स रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। सो गाइस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू इलेक्ट्रिकल मशीन्स पार्ट 4 में आप सबका स्वागत है। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज। जो आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड है, हम इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर कांस्टेंट टॉर्क कंट्रोल, ऑप्शन बी कांस्टेंट पावर कंट्रोल, कांस्टेंट वोल्टेज कंट्रोल एंड कांस्टेंट करंट कंट्रोल. So my dear friends, we know that torque is directly proportional to phi Ia, as we all know that power is equal to EBIA. So armature resistance control, if we increase the current, the torque increases. Torque is directly related to your armature current. So armature resistance control method is basically a constant torque control method. The option A is the right answer. Armature resistance control method. Okay guys, the next question is, if terminal voltage of 1000 rpm shunt motor is reduced to half, they are talking about shunt motor. Terminal voltage of shunt motor 1000 rpm, स्पीड आपके पास दे के रखी हुई है, अगर उसको हाफ किया जाए तो वी नो दैट स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स. And also we know that in case of motor, EV is nothing but simply terminal voltage minus IaRa. This is the value, guys, this is the value of E. Okay guys, this is the value of EV, back EMF, in case of motor, as we know that. What in case of generator, what in case of generator, it is written as V is equal to EB plus IaRa. What in case of motor, it is taken as Bt minus IaRa upon phi. So we are getting from here, guys. Also we know that from here we are getting that is directly proportional to your terminal voltage and flux. From here we can say that the speed is directly proportional to terminal voltage upon flux. So what they are saying that if we reduce to half, terminal voltage is reduced to half, terminal voltage को हाफ करो, इस वाली वोल्टेज को हाफ करो, BT हाफ अपॉन, देखिए टर्मिनल वोल्टेज को हाफ करेंगे तो आपका क्या होगा, फ्लक्स आर्मेचर करंट जो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. आर्मेचर करंट हाफ हो जाएगा तो फ्लक्स भी हाफ हो जाएगा. अगर फ्लक्स हमारे पास हाफ हो गया तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फिर से स्पीड क्या बचा, वही का वही, यानी कि स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट. तो आपका राइट आंसर इज सी, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, because whenever the terminal voltage is reduced, the shunt field current is also reduced. If the shunt field current is reduced, as we know that the flux is reduced in the same proportion. They are saying that terminal voltage is reduced to half, it means the shunt field current is reduced to half, it means the flux is reduced to half, then half is cancelled, and from we are getting B2 upon pi, the same value we are getting. It means the speed remains constant, either whether you increase or decrease the terminal voltage, especially in case of shunt motor. Next question, diverters are used only in case of diverters. देखिए सबसे पहले पता होना चाहिए डाइवर्टर्स क्यों यूज़ किए जाते हैं. डाइवर्टर इज नथिंग बट सिंपली, diverter is represented by like that a variable resistance which is connected across the machine. Like suppose this is a diverter, we have to convert it with which machine. Diverter is used specially for speed control purpose. Okay guys, it is used for speed control purposes. So shunt motor, series motor, either of these, none of these. The right answer is your series motor. Why it is used in case of series motor? It is used in case of series motor for the speed control purpose. We know that the starting speed of starting current of DC motor is very high, but in case of shunt motor it is not used, because जो shunt field जो रेजिस्टेंस होता है काफ़ी हाई होता है. क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है. अगर आप इसको शंट मोटर, सपोज ये शंट मोटर है, इसके आप क्या करोगे, इसको देखिए, सपोज आपने क्या किया, इसे डाइवर्टर, आपने इसको शंट फील्ड मोटर के
फील्ड वाइंडिंग के उसके अक्रॉस में क्या किया है, डाइवर्टर को इंसर्ट कर लिया, लेट अस इमेजिन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई, है ना, बहुत ही ज़्यादा हाई हम एक तरह से इसको कह सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी होता है। तो सारे का सारा करंट क्या होगा, यहाँ से जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है, सारा का सारा यहाँ से आएगा। तो मतलब देयर विल बी नो यूज़ ऑफ दिस बाइंडिंग। सो इसलिए इसको हम यूज़ किस में करते हैं, सिर्फ सीरीज मोटर में करते हैं, शंट मोटर में नहीं करते। बी इज़ द राइट ऑप्शन। इफ वी विल यूज़ इट then definitely the shunt field winding will get short circuit. Next is, which of the following starter is sufficient to start the DC series motor? ये देखिए गाइस, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है आपका। वी कैन से दैट, देखिए द क्वेश्चन इज which of the following starter is sufficient to start the DC series motor? 3-point starter, 4-point starter, 2-point starter. The right answer is your 2-point starter. Why the 2-point starter? Because in case of DC series motor, the armature winding and the field winding both are in series. So there will be one terminal from here, another line terminal. So we have a 2 terminal. So it's good to use 2-point starter. But we know that the 3-point and 4-point starter, this is used in case of shunt motor, and this is used in case of DC compound wound motor, ठीक है guys. So the right answer is your option C, 2-point starter, because armature winding and field winding, as we know that both are in series, so we need 2-point starter for speed control purposes. Okay guys. Which motor cannot be started on no load? Very simple. Options are shunt motor, series motor, cumulative compound motor, both B and C. The right answer is series motor. Series motor is not, we know that guys, N is equal to EB minus IARA upon 5. ओके गाइज, तो स्टार्टिंग में जो आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या रहता है, 0। आर्मेचर रेजिस्टेंस 0 रहेगा तो N इज इक्वल टू EB अपॉन 5। फ्लक्स डिक्रीज होगा तो स्पीड क्या रहेगी, स्टार्टिंग में हाई, तो हाई रहेगी। तो अगर आप नो लोड में इसको यूज़ करेंगे, जब नो लोड में हम यूज़ करते हैं तो उस केस में क्या होता है, बैक ईएमएफ नेग्लिजिबल। तो मतलब जो स्पीड बहुत ही डेंजरसली हाई स्पीड में आपकी डीसी सीरीज मोटर क्या करती है, स्टार्टिंग में रन करती है। तो इसलिए इसमें कोई ना कोई लोड हमें कनेक्ट करना ही पड़ता है। तो विच मोटर कांट बी स्टार्टेड ऑन नो लोड? द राइट आंसर इज डीसी सीरीज मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग are the advantage of carbon brushes over the copper brushes? Carbon brushes or copper brushes? One is your carbon and another one is your copper brushes. देखिए guys, they are not hard as copper brushes. They are talking about carbon brushes. They are self lubricating in nature. Yes, right answer. And in case of any sparking, they will be less damaged than copper brush. Yes, all of these are correct answers, because the carbon brushes, but there is a one disadvantage that the copper brushes have high rating, the carbon brushes has low rating. But they are not hard as copper, they are very very lubricating in nature. All options are accurate, है ना। उसमें स्पार्किंग भी क्या होती है, आपकी कम होती है। क्वेश्चन नंबर 7 गाइज, द साइज ऑफ इंटरपोल इज स्मॉल एज कम्पेयर टू मेन पोल, व्हाट इज द रीजन? हमें पता है, सपोज ये हमारे पास क्या है, डीसी मोटर है गाइस। सपोज लेट अस इमेजिन ये मेन पोल है आपके, और बीच में हमें पता है क्या होता है, रोटर या आर्मेचर हम कहें एक तरह से। तो इंटरपोल होते हैं आपके, वो कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं, हम सभी जानते ही है। दीज आर इंटरपोल्स, दीज आर इंटरपोल्स। आगे से टैपर्ड शेप होती है इनकी ना, ऐसे। तो इंटरपोल्स, समटाइम्स इंटरपोल बाइंडिंग्स कई बार ऐसे भी लगी होती है ना, इसका ध्यान रखना। आगे हैं तो हमें पता है पोल शो में क्या लगे होते हैं, कंपनसेटिंग बाइंडिंग। तो इंटरपोल्स का क्या पर्पज़ रहता है? इंटरपोल्स, as we know that it nullify the armature reaction as well as it neutralize the it reduces the reactance voltage in the coil that goes under commutation. But interpole question पूछा हुआ है, the size of interpole is small इसलिए होता है ताकि जो इंटरपोल रीजन में सैचुरेशन, इस रीजन जोन में सैचुरेशन ना हो पाए, प्रॉपरली वो नलीफाई आर्मेचर रिएक्शन को कर सके। तो इन ऑर्डर टू नॉट
to get saturated, in order to get saturated, obvious है, in order to not to get saturated, so that it can work properly, not to get saturated. The option A is the right answer guys. सैचुरेशन ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, उसके साइज़ को छोटा रखते हैं जितना उसका हमारे पास ज़रूरत है. नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ द इंटरपोल आर नलीफाई रिएक्टेंस वोल्टेज एंड इंप्रूव द कम्यूटेशन. ऑप्शंस आर the function of interpoles are yes nullify the reactance voltage and improve the commutations. नलीफाई ये एक्चुअली क्या था माय डियर फ्रेंड्स, द फंक्शन ऑफ द क्वेश्चंस, देखिए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया. द फंक्शंस ऑफ द इंटरपोल्स आर, ये हमारे पास यहाँ तक क्वेश्चन है और ये आपके पास ऑप्शन ए है और उसके बाद नेक्स्ट फर्दर आपको ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ठीक है ना. तो ओबियस है इंटरपोल्स का क्या काम होता है, तो नलीफाई रिएक्टेंस वोल्टेज एंड इंप्रूव कम्यूटेशन होता है. दूसरा होता है रिड्यूस क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट एंड इंप्रूव कम्यूटेशन. तो बोथ ए एंड बी, सी इज द राइट ऑप्शन गाइज. ओके गाइज, देखिए क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट कब इंड्यूस होता है आपके पास, जब आपके पास क्या होती है आर्मेचर रिएक्शन. दिस इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन व्हेन एवर एज वी नो दैट आर्मेचर रिएक्शन डिस्टॉर्ट द मेन फील्ड फ्लक्स. ओके गाइज, तो एक तो ये नलीफाई करता है आपका रिएक्टेंस वोल्टेज. रिएक्टेंस वोल्टेज क्या होता है, जो जब आपका कॉइल जो क्या होता है अंडर कम्यूटेशन जाता है तो उसमें सेल्फ जनरेटिंग वोल्टेज होता है, सेल्फ जनरेटिंग वोल्टेज होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं रिएक्टेंस वोल्टेज. ठीक है गाइज, तो ये आपका इंटरपोल क्या करता है, इंटरपोल जोन में एमएमएफ प्रोड्यूस करता है. दैट एमएमएफ प्रोड्यूस अपोजिस द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यूरिंग कम्यूटेशन. ठीक है, नेक्स्ट इज रिड्यूस क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट एंड कम्यूटेशन को क्या करता है, इंप्रूव करता है. कम्यूटेशन क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ एसी करंट इनटू डीसी एंड डीसी इनटू एसी. तो कोई प्रॉब्लम ना आ जाए इसलिए हम इंटरपोल का यूज़ करते हैं. ठीक है गाइज, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. इंटरपोल बाइंडिंग विल एक्ट इन इंटरपोल रीजन. ऑप्शन ए compensating binding will act under the pole. Guys, both are accurate answer because interpole binding already have told you that interpole binding आपकी क्या होती है, इंटरपोल विल एक्ट इन इंटरपोल रीजन. इंटरपोल रीजन होते हैं, है ना, जो मेन पोल के बिल्कुल साथ में होता है इंटरपोल रीजन. ओके गाइज, और जो कंपनसेटिंग बाइंडिंग क्या होती है, पोल शू में, बिल्कुल आगे ऐसे करके पोल शू में होती है कंपनसेटिंग बाइंडिंग. तो अंडर द पोल आपकी ये होती है. तो राइट आंसर इज योर सी. Next question is in DC machine shape of the main field flux distribution. तो guys, जो main field flux distribution होता है, जो main field होती है, as we know that ये DC machine है हमारे पास, ये हमारे पास main poles है, suppose 4 main poles भी है. let us imagine जो यहाँ से flux produce, देखिए flux कहाँ से होता है, main pole से flux आएगा, है ना. main poles के flux के बाद अंदर जो आपके पास क्या होगा, जो अंदर आर्मेचर होगा, ये आपका बाहर का मेन पोल का रीजन, अंदर वाले आर्मेचर का एक अपना फ्लक्स रहता है, उसका क्या रहेगा अपना फ्लक्स, और बाहर वाले का क्या रहेगा अपना फ्लक्स रहेगा. तो जो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ आपको, जो इन डीसी मशीन मेन फील्ड फ्लक्स इज, जो मेन फील्ड फ्लक्स जो रहता है आपका वो देखिए कुछ ऐसा जैसा रहता है आपका. ओके गाइज, उसकी जो वेव फॉर्म में क्या रहती है, कुछ ऐसी जैसी रहती है. सॉरी, थोड़ा मैंने इसको एसी वेव फॉर्म की तरह बना दिया. देखिए उसकी वेव फॉर्म कुछ ऐसी रहती है, ट्रेपेजॉइडल, या हम एक तरह से कहें फ्लैट टॉप्ड, है ना. इस तरह की वेव फॉर्म आपकी क्या होती है, मेन फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन से निकलती है. तो ऑप्शन बी आर एक्यूरेट आंसर. Next is in DC machine shape of armature MMF waveform is, shape of DC machine shape of armature MMF waveform. मैंने अभी आपको बताया कि ये होती है मेन फील्ड फ्लक्स वेवफॉर्म आउटर साइड, एंड इनसाइड क्या होती है आर्मेचर MMF वेवफॉर्म, जो क्या होती है ट्रायंगुलर डायरेक्टेड, वो ऐसी होती है. ओके गाइज, ट्रायंगुलर एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स ब्रशेस एक्सिस. दिस इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर गाइज. ब्रशेस कहाँ लगी होती है आपकी, जो बीच में कम्यूटेटर में लगी होती है ब्रशेस,
आर्मेचर की जो वेव फॉर्म आपकी जो निकलती है वो डायरेक्टेड होती है टूवर्ड्स ब्रशेस, लेकिन होती किस शेप में, वो ट्रायंगुलर शेप में। इसको आप याद रख सकते हो। ऑप्शन ए आर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डीसी मशीन शेप ऑफ नेट फ्लक्स डेंसिटीज, शेप ऑफ नेट फ्लक्स डेंसिटीज। तो दोस्तों हट फिर के जो हमारे पास नेट फ्लक्स डेंसिटी उसकी कैलकुलेशन होती है, आपकी आर्मेचर फ्लक्स डेंसिटी और दूसरी आपकी मेन पोल फ्लक्स डेंसिटी, जो नेट फ्लक्स फाइनल आपको जो मिलती है वो जो उसकी जो वेवफॉर्म जो होती है थोड़ी ऐसी पीकी टाइप की होती है, पीकी। ओके गाइज, तो राइट आंसर इज योर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ये बहुत आसान थोड़े क्वेश्चंस थे, सिंपल ट्रिकी। इन डीसी मशीन इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्लॉटेड बिटवीन। देखिए, we know that to find the performance and in the application of the DC machine characteristics are plotted between as we know that जो ये characteristics plot की जाती है between, ये होती है आपकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा हुआ है। तो इंटरनल कैरेक्टर एक होती है आपकी नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, एक होती है ऑन लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऑन लोड कैरेक्टरिस्टिक्स टू टाइप्स की होती है, एक होती है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक होती है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आपकी जनरेटेड वोल्टेज और आर्मेचर करंट EG एंड IA, इसके बीच में जो रिलेशनशिप आता है डीसी मशीन का, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी प्लॉट होती है आपकी इन दोनों के बीच में होती है। तो एक्सटर्नल किस में होती है आपकी, टर्मिनल वोल्टेज और लोड वोल्टेज, लोड करंट, टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, और इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या होगी, EG और I के बीच में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Next question is series generators are used in which of the following applications? Series generators are used in which of the following application? तो ओके गाइज, सीरीज जनरेटर्स क्या करता है आपके पास, इट हैज़ ए वेरी हाई राइजिंग वोल्टेज कैपेसिटी, सो it is not used generally in distribution, it is not used generally in general operations like we have to use it at home somewhere else. Two options are aircraft arc welding used as a booster in DC distribution or transmission. Yes, it is used as a booster in DC distribution and transmission, so that the compensation and the losses due to voltage can be compensated. सो दोस्तों जो डीसी सीरीज जनरेटर कहाँ यूज़ किया जाता है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में। ओके गाइज, एक ताकि हमारे को जो एक एक्स्ट्रा मतलब एक राइजिंग वोल्टेज मिले, एक पुशअप मिले, ताकि जो हमारे लॉसेस जो क्या हो कम हो। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग जनरेटर्स आर यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग, विच ऑफ द फ्लोइंग जनरेटर्स आर यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि आर्क वेल्डिंग में कौन सा जनरेटर यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको 14 क्वेश्चन बताए, ये 15 क्वेश्चन है, बहुत ही आसान इसका हमारे पास आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन बॉक्स में कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, विद रीजंस आप कमेंट में आप इसका जो आंसर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके आंसर्स को हाईलाइट करेंगे जो सबसे पहले आंसर देगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड वंस अगेन आई मस्ट से दैट प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज़ बेल आइकन दबाइए और लेटेस्ट एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए, तो ताकि हम इसी तरह की आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQ की सीरीज को, विद दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर JEE AE पर्पजेज, स्पेशली फॉर HP SSC और HWSC एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।